चलो गाइस स्टार्ट कर ले। पता नहीं रे उस समय ना हट गए थे समझा। और मतलब प्रोग्रेस दिखा रहा था फिर क्लिक कर रहे थे, पता नहीं कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। फिर स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किए तो हुआ फिर। चलो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे गाइस, जिसका नाम है प्लास्टिक एनालिसिस। क्या नाम है? प्लास्टिक एनालिसिस। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, ज्यादा ज्यादा दिमाग उमाग नहीं खर्चा होगा, नॉर्मल तरीके से भी समझेंगे तो हो जाएगा। चलो थोड़ा बहुत शुरुआत में लिखते हैं गाइस, उसके बाद चलते हैं। प्लास्टिक एनालिसिस, ठीक है। ये एक नया चैप्टर है तुम्हारा, प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस, प्लास्टिक एनालिसिस, ठीक है। प्लास्टिक एनालिसिस तो ध्यान से समझेंगे प्लास्टिक एनालिसिस को। सबसे पहले गाइस इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आखिर ये है क्या, देखो, है ना। पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं गाइस, उसके बाद तुम लोग को समझाते हैं। इंट्रोडक्शन, 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 ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। फॉर द पर्पस ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर, है ना। फॉर द पर्पस ऑफ, for the purpose of, for the purpose of, for the purpose of plastic analysis of a structure, purpose of plastic analysis, plastic, and for the purpose of plastic analysis of a structure, plastic analysis of a structure, plastic analysis of structure, plastic analysis of structure, and for the purpose of plastic analysis of a structure, the stress strain diagram, the stress, the stress strain diagram, the stress strain diagram, the stress strain diagram, the stress strain diagram is taken in a modified form, is taken, is taken in a modified form, 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 है ना। एक लाइन और लिख लेना। We will assume that there is a, we will assume that, we will assume that, we will assume that, we will assume that, we will assume that there is a definite, है ना। There is a definite, there is a definite, there is a definite, है ना, elastic range, there is a definite elastic range, there is a definite elastic range, and beyond this 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 range, the material is assumed to be, है ना, the material is assumed, the material, the material, the material is assumed to have, है ना, is assumed, is assumed, the material is assumed to have, to have, to have changed, 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 to have changed over to a plastic state, over to a plastic state। एक लाइन और लिख लो फिर गाइस समझाते हैं, है ना। प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, है ना। इन द गिवन फिगर बिलो shows the, है ना, इन द गिवन, है ना, इन द
in the given figure, in the given figure, in the given figure below, below, below shows the modified, shows the modified, modified, shows the modified, modified ideal elastic plastic, ideal elastic plastic, ideal elastic plastic stress diagram, stress diagram, stress diagram. In this diagram, OC, and in this diagram, in this diagram, in this diagram, in this diagram, OC represent, OC represent, OC represent the elastic range, OC represent the elastic range, elastic range, and CD represent the, and CD represent the plastic range, represent the plastic range, represent the plastic range. देखो इसको ध्यान से समझेंगे यार क्या लिखा हुआ है ना। बोर्ड नंबर 2 में ही इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं गाइस, तुम लोग को समझाते हैं। For the purpose of plastic analysis of a structure, the stress strain diagram is taken in a modified form. We will assume that there is a definite elastic range, and beyond this range, the material is assumed to have a change over to a plastic state. In the given figure, below shows the modified ideal elastic plastic stress diagram. In this diagram, OC represent the elastic range and CD represent the plastic range. ठीक है, OC रिप्रेजेंट द इलास्टिक रेंज एंड CD रिप्रेजेंट द प्लास्टिक रेंज। गाइस इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझते हैं हम लोग, ये चीजें क्या बताना चाह रहा है। देखो बोर्ड नंबर 2 में आके इसका जस्टिफिकेशन करते हैं, इसका गाइस क्या करते हैं, इलुस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोलना चाहते हैं सर, एक बार बोर्ड 1 कीजिए ना। लो हो गया सर। देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो आमतौर पे तुमने देखा है गाइस, जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है माइल्ड स्टील का, वो कुछ ऐसा होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल फैशन में शुरुआत क्लास और आरसीसी में भी देखे थे गाइस, जिस तरह से होता है। देखो जब मटेरियल पे गाइस हम लोग लगाते हैं लोड, तो मटेरियल गाइस कुछ इस स्टेप में अपना बिहेवियर दिखाता है। यहाँ तक कुछ स्ट्रेट होगा, फिर थोड़ा सा ऐसे होता है, फिर गाइस ऐसे करके ये ऐसे 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 हो जाता है गाइस, है ना। ये एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है। ओ हो गया ये तुम्हारा, दिस इज योर ओ, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी, ये ई हो गया, दिस इज योर एफ एंड दिस इज योर जी। ये गाइस पॉइंट मेरा क्या हो जाता है, जी हो जाता है। ठीक है गाइस, ये दिस इज द एक्चुअल, है ना गाइस, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, है ना। एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम गाइस ऐसा ही होता है। लेकिन गाइस इसको मॉडिफाइड कर दिया क्योंकि इसकी इस तरह से अध्ययन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट था, इसलिए गाइस इसमें एज्यूम कर लिया गया कि इलास्टिक जोन रहेगा और बियॉन्ड द इलास्टिक जोन प्लास्टिक जोन रहेगा। अर्थात ये गाइस मेरा स्ट्रेन है, ये गाइस मेरा स्ट्रेस है, तो गाइस यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या रहेगा, O से C इलास्टिक का, और C से D गाइस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लास्टिक का। ये मॉडिफाइड फॉर्म था गाइस, ये क्या था, मॉडिफाइड फॉर्म। दिस इज द इलास्टिक जोन एंड गाइस दिस इज द प्लास्टिक जोन, दिस इज द प्लास्टिक जोन। तो गाइस ये हुआ मॉडिफाइड, मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, है ना, मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो गाइस हम पूरा तुमको एनालिसिस करके दिखाएंगे कि प्लास्टिक एनालिसिस में हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, वो चीज हम तुमको बताएंगे। पर यहाँ पे हम तुमको ये बताना चाहेंगे कि गाइस हम लोग जो यहाँ पे मटेरियल का जो बिहेवियर लिए हैं वो इसको देख के नहीं, इसको देख के लिया गया। यानी कि माना गया गाइस, माना गया कि ऐसे भी देखो यहाँ पे रिकवरी कहाँ तक हो पाता है, बी पॉइंट पर। तो गाइस यहीं से, ठीक है, यहीं से गाइस इसको मान लिया कि इसके बाद प्लास्टिक जोन में चल जाएगा। तो इलास्टिक के बाद प्लास्टिक, ये हुआ गाइस मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, अब गाइस इसका जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तो चीजें हम लोग को क्लियर नहीं होगी। तो उससे पहले क्या करते हैं गाइस, उससे पहले क्या करते हैं, है कि नहीं, थोड़ा एजम्पशन समझ लेते हैं प्लास्टिक एनालिसिस का और प्लास्टिक थ्योरी का। ठीक है ना, प्लास्टिक थ्योरी का ये गाइस एजम्पशन समझ लेते हैं, है ना, कुछ हम लिख देते हैं। है ना, उसके बाद गाइस जब एनालिसिस करेंगे तो तुम लोग को और मतलब समझ में आएगा अच्छा से। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मतलब जो मटेरियल का बिहेवियर लिया गया गाइस वो मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे लिया गया है ना। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एजम्पशंस, 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 एजम्पशंस इन द प्लास्टिक एनालिसिस, इन द प्लास्टिक एनालिसिस। ये नहीं समझा होगा अभी तुम प्लास्टिक एनालिसिस क्या है, हम बताएंगे, डोंट वरी। प्लास्टिक थ्योरी पहले वैसे थोड़ा सा लिख लो, ये कभी भी ये थोड़ा सा लिख के रखो, क्योंकि ये ना जब एनालिसिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा, है ना। प्लास्टिक एनालिसिस और प्लास्टिक थ्योरी, तो पहले एजम्पशंस कुछ कुछ लिख लो, है ना, जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे तुम लोग सीखते चले जाओगे। चलो, पहला एजम्पशंस है कि स्ट्रेस पोजेस दी, स्ट्रेस पोजेस, stress poses the property of ductility, the property of ductility, property of ductility. Stress poses the property of ductility, ductility, and so it can be subjected, and so it can be, it can be, so it can be subjected, so it can be subjected, subjected, so it can be subjected, subjected to deform in the plastic state, 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 to deform in the plastic state without rupture या without fracture लिख सकते हो, without fracture, without fracture। इसका मतलब ये समझाते हैं। दूसरा नंबर पहले लिख लो, द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस a section, that is in case of beam plane section before bending remains plane after bending। गाइस ये वाला चीज तुम लोग बार बार पढ़े भी हो, है ना, कि गाइस क्या लिखोगे, इन केस ऑफ, है ना, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग, प्लेन सेक्शन। ये गाइस हम आरसीसी में भी पढ़ाए थे तुम लोग को, सिंपल थ्योरी जब था गाइस सोम में तो सर पढ़ाए होंगे। प्लेन सेक्शन will remain plane, will remain plane, will plane section will remain plane before and after bending, है ना, remain plane before and after bending, remain plane, remain plane before and after bending, before and after bending,
आफ्टर बेंडिंग, बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, स्ट्रेस पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, है ना गाइस, स्ट्रेस पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी सो इट कैन बी सब्जेक्टेड टू डिफॉर्म इन द प्लास्टिक स्टेट विदाउट फ्रैक्चर। ठीक है ना गाइस, तो ये बात तो सही है गाइस, है ना, कि देखो जिस मटेरियल के अंदर भी स्ट्रेस डेवलप होता है गाइस उसके अंदर ना डक्टिलिटी पाया ही जाता है, ये देखा गया है। तो ऑब्वियस सा बात है, जिसके अंदर डक्टिलिटी पाया गया है तो वो गाइस यदि प्लास्टिक स्टेट में डिफॉर्म भी करता है तो ब्रेक जल्दी नहीं करता है। तो स्ट्रेस पोजेस इन दी प्रॉपर, है ना, स्ट्रेस पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड सो इट कैन बी सब्जेक्टेड टू डिफॉर्म इन द प्लास्टिक स्टेट विदाउट फ्रैक्चर। दूसरा गाइस ये वाला तुम जो दूसरा एजम्पशन इसको बहुत बार तुम पढ़े हो, प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ये हमें क्या बताता है गाइस, स्ट्रेन लिनियरिटी का। ये कंसेप्ट तुम लोगों गाइस हम आरसीसी में भी क्लियरिफाई किए थे, तो यहाँ पे डेप्थ में नहीं जाना चाहेंगे। प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, जो गाइस स्ट्रेन लिनियरिटी को बताता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे गाइस, यहाँ जो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, पहला नंबर पॉइंट क्या बताएं सर? पहला नंबर पॉइंट ये बताएंगे गाइस कि जो भी देखो ऐसे ऑब्वियस सा बात है गाइस, जिस भी मटेरियल के अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है ऑब्वियस सा बात है वो गाइस उसके पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। और डक्टिलिटी क्या होता है, द गाइस द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दैट कैन हैपन इन ए मटेरियल विदाउट बीइंग रप्चर्ड। हाँ, तो गाइस बिना टूटे हुए, तो वही चीज लिखा है कि मटेरियल, है ना, यदि कोई मटेरियल गाइज स्ट्रेस है उसके पास तो ऑब्वियस बात है उसके पास प्रॉपर्टी डक्टिलिटी की होगी, तो गाइज वो प्लास्टिक स्टेट में जाएगा भी तो ब्रेक नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक स्टेट में जाए तो फिर वो ब्रेक कर जाए, ऐसा नहीं होता है गाइज। तुम देखा होगा माइल्ड स्टील, है ना, प्लास्टिक स्टेट में स्टार्ट हो रहा है गाइज तो बहुत अंतिम में जाके ब्रेक करता है जहां से लेकिन का फॉर्मेशन होता है। अब गाइज हम लोग तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है, अभी भी तुमको प्लास्टिक स्टेट समझ में नहीं आएगा, जब हम तुमको एनालिसिस समझाएंगे ना तब जाके तुमको प्लास्टिक का मतलब समझ में आएगा कि ये प्लास्टिक एनालिसिस आखिर बताना क्या चाहता है। ये चीज को अभी हम बताते हैं, क्लियरिफाई करेंगे थोड़ा देर में, उसके बाद है ना इस पे न्यूमेरिकल सब करेंगे। थोड़ा सा पहले थ्योरी कर लेते हैं, है ना, दो गो तो एजम्पशंस हो गया, तीसरा एजम्पशंस लिखेंगे गाइस, है ना, द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज मॉडिफाइड, है ना, इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मॉडिफाइड होता है, दैट इज a steel is assumed to be an ideal elastoplastic material। इलास्टिक है और प्लास्टिक है तो स्टील को कैसा माना गया है गाइस, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, है ना, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। है ना, सब लिख ही लो गाइस, ये सारा एजम्पशन धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा, है ना। द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, 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 है ना, द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज मॉडिफाइड, इसे मॉडिफाइड रहता है गाइस, इज मॉडिफाइड, इज मॉडिफाइड, दैट इज steel is assumed to be an steel is assumed to be an is assumed to be an assumed to be an to be an ideal elastic plastic material, ideal elastic plastic material, ideal elastic plastic material, ideal elastic plastic material. The stress strain diagram is modified, that is steel is assumed to be an ideal elastic plastic material, ideal plastic elastic plastic material माना गया है। तुमको तो अभी फिगर दिखाया ना मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। चौथा एजम्पशन याद रखना, कभी कभी लिखने आ जाता है यार, राइट डाउन द डायरेक्ट द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। द रिलेशन बिटवीन द टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, द रिलेशन between the tensile stress and tensile strain, tensile stress and tensile strain, and tensile strain and tensile strain, tensile strain. The relation between the tensile stress and tensile strain is the same as that between between
compressive stress and compressive strain, compressive stress, compressive stress and compressive strain, and compressive strain and compressive strain and compressive strain। तो गाइस मतलब बोलते हैं कि जैसा रिलेशन टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के बीच में होगा वैसा ही सेम गाइस रिलेशन मेरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन के बीच में होगा, है ना, कोई अंतर नहीं रहेगा। यदि लीनियर है गाइस टेंसाइल स्ट्रेस है ना विथ रेस्पेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेन, तो गाइस मेरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी गाइस क्या होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन के साथ लीनियर होगा, है ना। चौथा पॉइंट गाइस, पांचवा पॉइंट, पांचवा एग्जांपल से लिख सकते हो कि एट द स्टेज ऑफ लोडिंग, है ना, ये सब लिख लो गाइस, है ना। थोड़ा सा पहले कंप्लीट करने दे दो गाइस, उसके बाद फिर हम करते हैं। एट द स्टेज, एट द स्टेज, एट द स्टेज ऑफ लोडिंग, एट द स्टेज ऑफ लोडिंग, at the stage of loading, at the stage of loading, the various load, the various load, the various load, the various load on the structure, on the structure, on the structure, on the structure bear a constant proportion, bear a constant proportion, bear a constant proportion, bear a constant proportion to each other, to each other, है ना। पहले लिख लो गाइस, उसके बाद फिर हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। each other, है ना। छठा नंबर एक को लिखो। सात गो एजम्पशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। all connection provide, all connections, all connection provides, all connection provides, all connection provides satisfactory continuity, satisfactory, satisfactory continuity, satisfactory continuity, satisfactory continuity, so as to transmit, so as to transmit, so as to transmit plastic moment। गाइस प्लास्टिक मोमेंट क्या होता है ये भी तुमको अभी पता नहीं है, थोड़ा देर के बाद ये सारा चीज तुमको समझ में आएगा। ट्रांसमिट, so as to transmit the plastic moment, so as to transmit the plastic moment। गाइस देखो ये थोड़ा सा एनालिसिस अभी तुरंत करेंगे लास्ट एजम्पशंस के बाद, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज नॉट कंसीडर्ड, इसमें गाइस इलास्टिक डिफॉर्मेशन को नहीं कंसीडर करते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, deformation is not considered, is not considered, is not considered, is not considered। देखो गाइस इसको अब देखो सारा जो एजम्पशन है इसको अभी लिख के रखो अपना कॉपी में, ठीक है। थोड़ा देर के अंदर तुमको ये सारे एजम्पशंस क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। जैसे ही हम एनालिसिस का पार्ट करते हैं गाइस, तुम्हारा कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तुमको सब जगह समझ में आ जाएगा। देखो हम समझाएंगे, एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा, ये क्रूशियल पार्ट है। तो गाइस प्लास्टिसिटी क्या होता है ये सभी को पता होना चाहिए कि प्लास्टिसिटी कहते हैं किसको है, ये थोड़ा सा हम पहले लिखा देते हैं। है ना गाइस, प्लास्टिसिटी देखो हम लिख देते हैं गाइस। बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, लिख लियो, इसको लिख लियो। सारा एजम्पशंस हम एनालिसिस के बाद क्लियर करेंगे, जो तुमको नहीं समझ में आएगा तुमको नहीं समझ में आएगा। आ जाएगा इस बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए। यस सर। चलिए सर बोर्ड 1 करिए ना एक बार सर। हो गया सर। देखो मेन है एनालिसिस गाइस, एनालिसिस समझ गए ना, तो इसको जो जितना भी अंग्रेजी में लिखा हुआ चीज समझ में आ जाए, है ना गाइस, समझते हैं। गाइस प्लास्टिसिटी क्या होता है, थोड़ा सा पहले लिख देते हैं प्लास्टिसिटी क्या होता है। देखो प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होता है गाइस, है ना, लिख लेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल,
it is the property of material, it is the property of material, it is the property of material, property of material, it is the property of material, it is the property of material by virtue of which, 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 है ना, on loading, on loading, loading देने पे, on loading, on loading, on loading, material undergoes, material undergoes, material undergoes, material undergoes permanent deformation, material undergoes permanent deformation, permanent deformation, permanent deformation, material undergoes permanent deformation, deformation without breaking, without breaking, विदाउट ब्रेकिंग। देखो गाइस ये तो ठीक है, ये तो लैंग्वेज समझ में आता है यार। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिसके द्वारा क्या होता है गाइस, जिसके द्वारा क्या होता है ना, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ऑन लोडिंग मटेरियल अंडरगोस परमानेंट डिफॉर्मेशन, बिना ब्रेकिंग का गाइस, है ना, विदाउट ब्रेकिंग, है ना, मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाता है, वो गाइस कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेरा प्लास्टिसिटी। अब गाइस देखो हम लोग एनालिसिस करते हैं, तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि प्लास्टिक थ्योरी समझाने के लिए ना ध्यान से समझना, बढ़िया से लिखो, यही मेन है। इसको समझ गए तो सारा राम कहानी समझ में आ जाएगा। एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस गाइस करते हैं एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ बीम, बीम का एनालिसिस बाय प्लास्टिक थ्योरी, एनालिसिस ऑफ बीम बाय प्लास्टिक थ्योरी, बाय प्लास्टिक थ्योरी, है ना, एनालिसिस ऑफ बीम बाय प्लास्टिक थ्योरी, एनालिसिस ऑफ बीम बाय प्लास्टिक थ्योरी, एनालिसिस ऑफ बीम बाय प्लास्टिक थ्योरी, है ना। देखो अब यहाँ पर गाइस थोड़ा गहनता से चीजें को हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे कि देख लीजिए, एक गाइस मैं लेता हूँ बीम, ठीक है, मैं लेता हूँ गाइस एक बीम, देखो यह एक बीम है गाइस, जैसे एन एग्जांपल हम तुमको बताना चाहेंगे, यह एक बीम है, यह एक बीम है गाइस। इस बीम पे ये गाइस मान लीजिए मेरा रोलर सपोर्ट है, दिस इज माय रोलर सपोर्ट एंड दिस इज माय हिंज सपोर्ट, ये है गाइस मेरा हिंज सपोर्ट, और इस पर गाइस मेरा लोड आ रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर का, W किलो न्यूटन पर मीटर का, W किलो न्यूटन पर मीटर का, W किलो न्यूटन, W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड आ रहा है। तो जब W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड आ रहा है गाइस, तो इसको हम कट करो, है ना, वी आर कटिंग द सेक्शन से गाइस, हम इसको कट करते हैं, यहाँ से कट करते, तो गाइस मेरा इसका क्रॉस सेक्शन कैसा आएगा, ऑब्वियस सा बात है, इसका क्रॉस सेक्शन के लिए हम बात करें तो गाइस इसके क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे रहेंगे, इसके क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे रहेंगे गाइस, और गाइस, है ना, अब गाइस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, ठीक है गाइस, ये गाइस मेरा न्यूट्रल एक्सिस होता है, तुमको पता होगा, है ना गाइस। यहाँ पे दो टर्म हम ले रहे हैं जी, एक वो ले रहे हैं F, यहाँ पे स्टैंड करेगा स्ट्रेस के लिए, F स्टैंड करेगा स्ट्रेस के लिए, और Fy स्टैंड करेगा गाइस, F करेगा, F किसके लिए करेगा, F करेगा गाइस स्ट्रेस के लिए, ठीक है, F किसके लिए करेगा गाइस, स्ट्रेस के लिए, F करेगा तुम्हारा स्ट्रेस के लिए, और Fy करेगा गाइस मेरा यील्ड स्ट्रेस के लिए, है ना, Fy क्या करेगा गाइस, मेरा यील्ड स्ट्रेस के लिए करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि गाइस ये हम पढ़ते आ रहे हैं इंजीनियरिंग में, तो गाइस ये तुम्हारा कंप्रेशन का जोन है, ये मेरा टेंशन का जोन है, दिस इज माय कंप्रेशन एंड दिस इज माय जोन, है ना। और गाइस ये मान लीजिए इसकी बी है, दिस इज माय बी, है ना गाइस, ये विड्थ है एंड दिस इज मान लो इसका ओवरऑल डेप्थ है, दिस इज, चलो ठीक है, ओवरऑल डेप्थ का एनालिसिस कर रहे हैं प्लास्टिक थ्योरी की मदद से। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इसकी जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, पहले गाइस इसकी स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्ट्रेन और स्ट्रेस गाइस ये लगभग इसमें एक ही जैसा बनता है यार, यदि इसको हम ऐसे बोल देते हैं इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ये गाइस ऐसे,
और ये गाइस ऐसे। ये तो गाइस ये क्या हो गया, स्ट्रेन डायग्राम यदि हम दे रहे हैं तो ये हो गया गाइस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन और ये हो गया गाइस टेंसाइल स्ट्रेन। दिस इज गाइस टेंसाइल स्ट्रेन। ये हो गया गाइस मेरा स्ट्रेन डायग्राम। ये क्या हो गया, स्ट्रेन डायग्राम। इसी के बिहाफ में मेरा स्ट्रेस डायग्राम भी होता है ना गाइस। क्या होता है, स्ट्रेस डायग्राम भी होता है, वो ऐसा ही होता है गाइस। इसमें ये देखो, ये इस तरह से मेरा स्ट्रेस डायग्राम जाता है। दिस इज माय स्ट्रेस डायग्राम। ये मेरा स्ट्रेस डायग्राम जाता है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस चीज को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। शुरुआत में देखो लोड आए, मोमेंट आए, तो ये देखो, ये इसका एक्सट्रीम फाइबर हुआ, ये इसका एक्सट्रीम फाइबर हुआ। तो गाइस मान लीजिए इसकी जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो यील्ड स्ट्रेस से कम ही डेवलप हो रही है। क्या हो रही है गाइस, यील्ड स्ट्रेस से कम ही डेवलप हो रही है। यील्ड स्ट्रेस से गाइस कम ही डेवलप हो रही है। एक समय ऐसा आया गाइस कि जो स्ट्रेस डायग्राम है, देखो ध्यान से समझना, जो मेरा स्ट्रेस डायग्राम है वो गाइस क्या हुआ, जो इसमें स्ट्रेस एक्सट्रीम फाइबर में आ रहा है स्ट्रेस, है ना, लोड के चलते, ऑब्वियस बात है लोड देंगे तो गाइस स्ट्रेस डेवलप होगा इसके फाइबर में। तो ये गाइस कंप्लीटली जो स्ट्रेस आ रहा है वो किसको पकड़ लेगा गाइस, यील्ड स्ट्रेस को। किसको पकड़ लेगा गाइस, यील्ड स्ट्रेस को, है ना। तो ये चीज आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अंडरस्टैंड करो डियर स्टूडेंट, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से समझो। ये जो गाइस जो मेरा स्ट्रेस है रे, यहाँ से गाइस लोड देंगे तो लोड दे रहे तो स्ट्रेस डेवलप हुआ, तो देखो अभी यील्ड स्ट्रेस से कम ही था, फिर लोड इंक्रीज किए तो गाइस क्या हो गया, इसका जो एक्सट्रीम फाइबर है वो गाइस यील्ड स्ट्रेस को गेन किया, फिर लोड बढ़ा दो, फिर क्या करो गाइस, लोड को बढ़ा दो, फिर क्या करो गाइस, लोड को बढ़ा दो। यदि तुम फर्दर लोड को इंक्रीज करते हो तो गाइस अब एक्सट्रीम फाइबर में जितना स्ट्रेस होना था यील्ड तक पहुंच चुका है। तो अब क्या करेगा गाइस, अब मान लीजिए इसका जो ये है यहां से लेकर अब कुछ फाइबर तुम्हारा क्या होगा, कुछ फाइबर ये गाइस क्या हो गया, ये अब देखो नीचे वाला फाइबर जो है जो कंप्लीट अभी नहीं पहुंचा यील्ड स्ट्रेस पे, वो पहुंचने का कोशिश करेगा, वो गाइस पहुंचने का कोशिश करेगा, वो क्या करेगा गाइस, पहुंचने का कोशिश करेगा, वो क्या करेगा गाइस, पहुंचने का कोशिश करेगा, वो क्या करेगा गाइस, पहुंचने का कोशिश करेगा, है ना। यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है गाइस, इसका कुछ फाइबर यील्ड तक पहुंचा, है ना। नीचे देखो ये पहुंच चुका है एक्सट्रीम फाइबर, अब फर्दर लोड बढ़ा रहे तो फिर गाइस इसका ये वाला फाइबर जो है, ये गाइस इस तरह से पूरा फाइबर है तो ये गाइस पहुंचा, फिर भी हम माने नहीं, लोड बढ़ाते चले गए। एक समय ऐसी आएगी डियर स्टूडेंट, इस सारा का सारा फाइबर क्या हो जाएगा, सारा का सारा फाइबर क्या हो जाएगा सर, सारा का सारा फाइबर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली यील्ड कर जाएगा। क्या कर जाएगा गाइस, कंप्लीटली यील्ड कर जाएगा। दोनों का नेचर अलग लगेगा, इसलिए गाइस रो अलग अलग ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। यानी गाइस ये मेरा एफ वाई, ये मेरा एफ वाई, और ये गाइस मेरा क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक हिंज, है ना गाइस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा हो गया, है ना, ये हो गया गाइस तुम्हारा, है ना, है ना, ये गाइस क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीटली प्लास्टिक स्टेट, ये तो प्लास्टिक इंच हो गया, और ये गाइस तुम पूछ सकते हो प्लास्टिक स्टेट। यानी कि प्लास्टिक स्टेट यदि तुमसे कोई पूछे कि मटेरियल प्लास्टिक स्टेट में है तो इसका मतलब क्या बोलोगे, यदि मटेरियल प्लास्टिक स्टेट में है तो उसके क्रॉस सेक्शन के अलोंग में जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है उसका सारा का सारा फाइबर क्या हो चुका है डियर स्टूडेंट, सारा का सारा फाइबर क्या हो चुका है डियर स्टूडेंट, सारा का सारा फाइबर यील्ड कर चुका है, यील्ड कर चुका है मतलब यील्ड स्ट्रेस को हासिल कर चुका है गाइस, है ना। क्या हासिल कर चुका है गाइस, सारा का सारा जो है यहाँ पे गाइस वो क्या हासिल कर चुका है, वो तुम्हारा यील्ड स्ट्रेस को हासिल कर चुका है। कोई मटेरियल का प्लास्टिक स्टेट में होना क्या बताता है, कोई मटेरियल का प्लास्टिक स्टेट में होना बताता है सर कि उसके क्रॉस सेक्शन के क्रॉस में, उसके क्रॉस सेक्शन के क्रॉस में जो भी मेरा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है उसके सारे फाइबर क्या हो चुके हैं गाइस, यील्ड कर चुके हैं, उसके सारे फाइबर गाइस यील्ड कर चुके हैं, अर्थात यील्ड स्ट्रेस को ऑब्टेंड कर चुके हैं, है ना गाइस, यील्ड
स्ट्रेस को ऑब्टेन कर चुके हैं। है ना गाइस, है ना? देखो यानी कि गाइस कोई मटेरियल का प्लास्टिक स्टेट में आने का मतलब क्या है? ये गाइस सारा ही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो ये स्ट्रेस बता रहे हैं। यानी कि कोई मटेरियल गाइस तुम्हारा प्लास्टिक स्टेट में है तो तुम क्या बोलोगे कि सर उसके क्रॉस सेक्शन के क्रॉस में जो मेरा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है उसके सभी फाइबर क्या कर चुके हैं गाइस? यील्ड पे पहुंच चुके हैं। क्या पहुंच चुके हैं गाइस? यील्ड पे पहुंच चुके हैं। है ना गाइस? तो देखो यहाँ पे ना तीन तरह का एक मोमेंट की हम लोग बात करते हैं गाइस। एक हम लोग बात करते हैं एम, सिंपली मोमेंट हुआ। एक क्या हुआ गाइस? सिंपली मोमेंट हुआ। एक गाइस एम वाई हुआ जिसको हम लोग यील्ड मोमेंट बोलते हैं गाइस, जिसको हम लोग यील्ड मोमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग यील्ड मोमेंट बोलते हैं गाइस, जिसको हम लोग यील्ड मोमेंट बोलते हैं। और एक होता है गाइस, एक होता है गाइस एमपी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक मोमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस प्लास्टिक मोमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? प्लास्टिक मोमेंट। एम हुआ गाइस मोमेंट, एम वाई हुआ यील्ड मोमेंट, और गाइस एम पी क्या हो गया गाइस? प्लास्टिक मोमेंट। है ना गाइस? प्लास्टिक मोमेंट। है ना? तो प्लास्टिक मोमेंट कब बोलेंगे गाइस? प्लास्टिक मोमेंट देखो ये गाइस बात को समझिएगा डियर स्टूडेंट, है ना? यील्ड मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट, है ना? ये क्या बताना चाहता है? ये क्या बताना चाहता है? देखो इस चीज को समझो, इस चीज को समझो। ये गाइस प्लास्टिक स्टेट है। फाइनली गाइस जब प्लास्टिक एनालिसिस या प्लास्टिक थ्योरी से कोई मटेरियल डिजाइन करते हैं तो उसका हर एक फाइबर को हम कहाँ तक पहुंचाते हैं डियर स्टूडेंट? कहाँ तक पहुंचाते हैं? यील्ड स्टेज तक। तो गाइस यहाँ पर जो मेरा मोमेंट है वो बाय डिफॉल्ट प्लास्टिक मोमेंट हो जाता है। और गाइस ये ज्यादा होता है यील्ड मोमेंट। यील्ड मोमेंट मतलब वही यील्डिंग पॉइंट वाला बात हो रहा है। यील्ड वाला मतलब क्या हो रहा है गाइस? यील्ड मतलब क्या हुआ? वही यील्डिंग। है ना? तो गाइस यहाँ पे जो यील्ड मोमेंट होगा और यहाँ पे देखो यहाँ का सारा फाइबर क्या हो चुका है? यील्ड हो चुका है। तो ये जोन जो मेरा हुआ गाइस, ये स्टेट क्या हुआ? प्लास्टिक स्टेट। और इस प्लास्टिक स्टेट में जो मोमेंट होता है गाइस वो बाय डिफॉल्ट मेरा प्लास्टिक मोमेंट कहलाता है। और गाइस प्लास्टिक स्टेट में देखा गया है, प्लास्टिक स्टेट में देखा गया है गाइस कि प्लास्टिक मोमेंट गाइस यील्ड मोमेंट से ज्यादा होता है। अब गाइस यहाँ पे अब देखो, अब तुम ध्यान से समझो, ये गाइस है ना, ये गाइस मेरा कहने का मतलब ये साधारण तौर पे है, ये साधारण तौर पे गाइस लोड लगाए स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ, तो कोई जरूरी थोड़ा है कि इसका एक्सट्रीम फाइबर मेरा यील्डिंग तक पहुंच चुका है। तो जो भी देखो यहाँ पे लेस देन है, फिर लोड फर्दर बढ़ाए तो गाइस स्पेस क्या हुआ? यील्ड तक पहुंचा। फिर फर्दर बढ़ाए तो कुछ फाइबर और इसका यील्ड करने लगा, और लोड बढ़ाए गाइस तो कंप्लीट सारा का सारा फाइबर देखो इसका लेयर बाय लेयर में जो स्पेस है सभी यील्ड में पहुंच चुके हैं, सभी पहुंच चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग बार बार दो चीज करेंगे, एक यील्ड मोमेंट, एक प्लास्टिक मोमेंट। यानी कि गाइस एक हम लोग पढ़ेंगे है ना जो सिंपली गाइस जो मेरा होता है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और एक होता है गाइस मेरा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो गाइस दोनों चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, है ना? पहले तो हम लोग समझेंगे गाइस, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस वी हैव टू नो वी शुड हैव टू नो द गाइस मोमेंट, यानी इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। गाइस इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है इस चीज को समझते हैं डियर स्टूडेंट। तो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस हमारे लिए आसान ही है क्योंकि गाइस हम लोग सोम से प्रीवियस बोर्ड कीजिए ना। हाँ है ना? तो गाइस कोई तुमसे पूछेगा प्लास्टिक स्टेट का मतलब क्या है तो तुम क्या बोलोगे डियर स्टूडेंट? तुम गए भाईवा में तुमसे पूछ दिया कि व्हाट इज, हाँ तो क्या बोलोगे गाइस? प्लास्टिक क्या बोलोगे? प्लास्टिक स्टेट क्या होता है, या फिर प्लास्टिक थ्योरी क्या बताता है गाइस? तुम क्या बोलोगे? तुम क्या बोलोगे गाइस? सर उस पॉइंट उस लोडिंग वो लोडिंग जब सारा फाइबर जो है वो यील्ड स्टेज पे हो। सर ये ऐसा स्टेट सर जिसमें मटेरियल का हर एक फाइबर अपना यील्ड स्टेज को गेन कर चुका हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना? ठीक है, वेरी गुड गाइस। अब हम लोग इसी को है ना दो तरीके से एनालिसिस करते हैं गाइस, एनालिसिस करते हैं, है ना? देखो बस दो वो है कॉन्सेप्ट, उसके बाद गाइस सेफ फैक्टर तुम लोग को निकालने आएगा, तुम लोग का सीनियर लोग को इससे पहले वाले साल में
रेक्टेंगुलर सेक्शन आया था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझ लेना, और कोलैप्स लोड कोई ज्यादा टफ नहीं है गाइस, है ना, हो जाएगा। थोड़ा सा तो ये हिंज फॉर्मेशन भी बताइएगा। क्या बोले, क्या बोले? हिंज फॉर्मेशन जो बोल रहे थे। हिंज फॉर्मेशन यही हुआ, देखो यहाँ तक जो मटेरियल हुआ ना गाइस, ये देखो यहाँ हिंज यही हुआ गाइस। हिंज का मतलब देखो यही गाइस, इसी को हम लोग प्लास्टिक हिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? ये जो हिंज हुआ ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? प्लास्टिक हिंज। ये पूरा स्टेट मेरा प्लास्टिक स्टेट हो गया, लेकिन ये गाइस मेरा क्या हुआ? प्लास्टिक हिंज। और ये प्लास्टिक हिंज पे क्या आएगा गाइस? यदि यहाँ पे मटेरियल हो गया, प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हो चुका है, तो हिंज का मतलब क्या होता है गाइस? हिंज का मतलब नहीं बोलता यहाँ पर मेरा हिंज है। जैसे कि गाइस देखो, यहाँ पे तुम देख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे जो लॉकेट है, लॉकेट में गाइस साइड में तुम देख रहा होगा, ये गाइस क्या है ना? अब यहाँ पे ये देखो, ये कितना का हिंज है गाइस, हिंज है, मतलब इस जगह पे क्या होगा? रोटेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो जब वहां पर जब प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हुआ है, प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हुआ है, देखो ध्यान से, प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हुआ है, इसका मतलब गाइस अब जब तुम फर्दर दोगे, तो गाइस यहाँ से क्या होगा? यहाँ से इस पॉइंट से गाइस, है ना, क्या होगा? तुम्हारा मटेरियल कोलैप्स कर सकता है, कोलैप्स हो जाएगा। प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन अंतिम स्टेट हो जाता है, मतलब इसके बाद फर्दर आप लोड दोगे तो तुमको गाइस कोलैप्स देखने को मिलेगा। तो प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब गाइस अब मटेरियल तुम्हारा फर्दर लोड को सस्टेन नहीं कर सकता है, क्योंकि सारा का सारा फाइबर अब फील्ड में जा चुका है। अब तुम लोड लगाओगे तो मटेरियल कोलैप्स कर जाएगा। तो गाइस अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो देखो सेक्शन मॉडुलस बोलो या फिर इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस बोलो, इसमें कोई दोमत नहीं है गाइस। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, देखिए सर, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस बोलिए या फिर इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गाइस जिसको हम लोग जेड से दिखाते, चूंकि यहाँ इलास्टिक लिख रहे हैं, तो गाइस जेड सफिक्स ई दिखा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जेड सफिक्स ई दिखा दो, है ना। ये गाइस, और ये इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस हम लोग कैसे निकालेंगे? हाउ वी आर इन पोजीशन टू फाइंड द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस? तो गाइस इसके लिए हम लोग फ्लेक्सुरल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, और फ्लेक्सुरल फॉर्मूला से आसानी से निकाल लेंगे गाइस, है ना, निकाल लेंगे। देखो फ्लेक्सुरल इक्वेशन गाइस हम लोग पढ़ चुके हैं ना, फ्लेक्सुरल इक्वेशन। फ्लेक्सुरल इक्वेशन क्या होता है गाइस? फ्लेक्सुरल इक्वेशन तुम लोग पढ़ चुके हो, इसी को गाइस हम लोग बेंडिंग इक्वेशन बोलते हैं, और ये तुम लोग सोम में पढ़े होगे, है ना गाइस। स्ट्रेसेस इन बीम करके वहां पे एक चैप्टर हुआ करता था, तुम लोगों को याद होगा। जैसे हम लोग 2 चैप्टर कवर करते थे, एक बेंडिंग इक्वेशन और एक गाइस शेयर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। देखो गाइस M/I ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को लेके जाएगा, M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो गाइस यहाँ से तुम्हारा, है ना, सिग्मा का फॉर्मूला बनेगा M इंटू वाई बटा आई, और गाइस ये तुम्हारा बन जाएगा M बटा आई बाई वाई। गाइस आई बाई वाई मेरा क्या हो जाएगा? M बाई जेड हो जाएगा। जेड इज योर सेक्शन मॉडुलस। जेड गाइस तुम्हारा क्या है? सेक्शन मॉडुल, है ना, जेड गाइस तुम्हारा क्या हो जाएगा? सेक्शन मॉडुलस, है ना गाइस। इसको जेड को यहाँ पे जेड ई दिखा दो, है ना। तो इस हिसाब से गाइस हेयर जेड ई, हेयर जेड, यही जेड ई गाइस सेक्शन मॉडुलस है ना। सेक्शन मॉडुलस मतलब बाय डिफॉल्ट इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस बोल रहा है, यही जेड ई क्या हुआ गाइस? इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं गाइस। और ये इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकता है? M बटा सिग्मा। और यहाँ पे सिग्मा बाय डिफॉल्ट कौन स्ट्रेस होता है गाइस, बता सकते हो? बेंडिंग स्ट्रेस ही होता है। क्या होता है गाइस? यहाँ भले मेंशन नहीं करता किताब, लेकिन दिस इज माय बेंडिंग, दिस इज माय बेंडिंग गाइस, दिस इज माय बेंडिंग स्ट्रेस होता है ना। तो गाइस याद रखना इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस मेरा क्या होता है? इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आई बाई वाई, या फिर गाइस M बटा सिग्मा। M गाइस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर मैक्सिमम मोमेंट इसको बोलते हैं, और गाइस Y है डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। अब गाइस हम लोग प्लास्टिक मोमेंट समझते हैं, अब बेहतरीन ढंग से प्लास्टिक मोमेंट समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिक मोमेंट, है ना गाइस। तो देखो ध्यान से समझना प्लास्टिक मोमेंट क्या होता है, प्लास्टिक मोमेंट क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे कि प्लास्टिक मोमेंट गाइस हम लोग कहते हैं किसको है? प्लास्टिक मोमेंट हम लोग कहते हैं किसको है? प्लास्टिक मोमेंट
कहते किसको हैं। देखो इस चीज को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा कि प्लास्टिक मूवमेंट कहते किसको है। उसके बाद गाइस क्वेश्चंस बनाएंगे। देखो प्लास्टिक मूवमेंट, हाँ लो, चलिए सर, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2 गाइस, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2, बताओ, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2? यस सर। चलिए प्लास्टिक मूवमेंट समझते हैं। यहाँ से वो क्वेश्चन आएगा गाइस, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम लोग देखा होगा, एक क्वेश्चन सॉलिड यहाँ से आया था गाइस, सॉलिड प्लास्टिक मूवमेंट, है ना गाइस, प्लास्टिक मूवमेंट, है ना, प्लास्टिक मूवमेंट। ये एनालिसिस का पार्ट है गाइस, तुम लोग के लिए हो जाएगा प्लास्टिक मूवमेंट, प्लास्टिक मूवमेंट, प्लास्टिक मूवमेंट, प्लास्टिक मूवमेंट। क्या लिखेगा? इट इज द मूवमेंट व्हिच जनरेट प्लास्टिक स्टेट एट द क्रॉस सेक्शन। क्या लिख सकते हो, यानी वैसा मूवमेंट। तो गाइज है ना, लोड इसेंट्रिक लगेगा तो गाइज मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। तो वैसा मूवमेंट जो प्लास्टिक स्टेट क्रॉस सेक्शन के क्रॉस में क्रिएट कर दे। क्या लिख सकते हो? इट इज द मूवमेंट, 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 है ना, which generate plastic state, which generate, which generate, which generates, which generates, है ना, it is the moment which generates plastic state, which generates, which generates plastic state, which generates plastic states, which generates plastic state, which generates plastic state at a cross section, at a क्रॉस सेक्शन। ओ मतलब गाइस वैसा मूवमेंट जो क्रॉस सेक्शन के क्रॉस में क्या डेवलप कर दे, डियर स्टूडेंट, क्या डेवलप कर दे सर, प्लास्टिक स्टेट क्रिएट कर। तो प्लास्टिक स्टेट तो बहुत सीखा है। मान लीजिए सर ये आपका क्रॉस सेक्शन है सर, ये आपका क्या है सर, क्रॉस सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन गाइस। अब गाइस क्या हो कि ये प्लास्टिक स्टेट क्रिएट करे, तो प्लास्टिक स्टेट यदि ये क्रिएट करता है माय डियर स्टूडेंट, यदि ये प्लास्टिक स्टेट क्रिएट करता है, यदि गाइस ये प्लास्टिक स्टेट क्रिएट करता है, यदि ये गाइस प्लास्टिक स्टेट क्रिएट करता है, यदि ये गाइस प्लास्टिक स्टेट क्रिएट करता है, तो क्या होगा गाइस, क्या होगा, क्या होगा ये सर, सारा का सारा फाइबर क्या होगा डियर स्टूडेंट, बताओ, सारा का फाइबर सर, सारा का सारा फाइबर ही मेरा क्या हो जाएगा, गेम कर देगा। ये देखो सारा का सारा फाइबर गाइस क्या हो गई, मेरी यील्ड कर गई। दिस इज द गाइस प्लास्टिक स्टेट। ये गाइस मेरा क्या हो गया, प्लास्टिक स्टेट। लेकिन गाइस अब इस सुनो, अभी तुम्हारा बात हो रहा था, अब देखो भाई मैं बताता हूँ, एक लाइन लिखिए, एनी फर्दर, एनी फर्दर, any further increase in the load, any further increase in the load, increase in the load, any further increase in the load, material get collapse। अब बताया ना, अब any further, अब इस स्टेट के बाद यदि फिर गाइस लोड बढ़ा दे रहे हो, सारा का सारा फाइबर अब यील्ड कर चुका है, मैक्सिमम स्ट्रेस गेन कर चुका है गाइस, any further increase in the load, in the load, material get collapse, 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 because no fiber, कोई फाइबर नहीं बचा हुआ है, because no fiber, देखो कोई भी फाइबर नहीं है गाइस जो यील्ड नहीं हो रहा है, अब बचा हुआ यील्ड के लिए, because no fiber is left to reach, है ना, is left to reach, reach कोई भी गाइस, है ना, no fiber is left to reach yield, है ना, नो फाइबर इज लेफ्ट टू रीच यील्ड, यील्ड में पहुंचने के लिए कोई फाइबर नहीं बचा है, सारा फाइबर यील्ड कर चुका है। एनी फर्दर इंक्रीज इन लोड, मटेरियल गेट कोलैप्स बिकॉज़ नो फाइबर इज लेफ्ट टू रीच यील्ड, सारा का सारा यील्ड मैक्सिमम यील्ड स्टेट तक पहुंच चुका है। आफ्टर द प्लास्टिक स्टेट, यही गाइस, अब यहीं पे गाइस मेरा हो जाएगा, आफ्टर द प्लास्टिक स्टेट, आफ्टर द प्लास्टिक स्टेट, आफ्टर द प्लास्टिक स्टेट, है ना, आफ्टर द प्लास्टिक स्टेट,
है ना, देयर इज कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या हुआ, फेलियर। देयर इज कोलैप्स, कोलैप्स हो जाएगा, देयर इज कोलैप्स, है ना, देयर इज कोलैप्स, देयर इज कोलैप्स। क्या होगा गाइस, कोलैप्स होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। इसी में गाइस हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को बताना चाहेंगे, सेफ फैक्टर। गाइस यदि परीक्षा में बार बार पूछेगा, VVI है, लिख लो। सेफ फैक्टर क्या होता है गाइस, डियर स्टूडेंट, सेफ फैक्टर। तो देखो सेफ फैक्टर को हम लोग S सफिक्स F से दिखाते हैं। सेफ फैक्टर को गाइस हम लोग क्या दिखाते हैं, S सफिक्स F से। सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर। तो गाइस सेफ फैक्टर का फॉर्मूला होती है, सेफ फैक्टर इज इक्वल टू, होता है गाइस, सेफ फैक्टर इज इक्वल टू प्लास्टिक मॉडुलस, है ना। अभी तुम क्या पता था, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस बोलो, सेक्शन मॉडुलस बोलो, या फिर इलास्टिक मॉडुलस बोलो, बात बराबर है गाइस, है ना। देखो इसका रेशियो क्या होता है गाइस, प्लास्टिक मॉडुलस होता है, ये प्लास्टिक है नॉट इलास्टिक, प्लास्टिक मॉडुलस यानी कि गाइस ZP, प्लास्टिक मॉडुलस बटा इलास्टिक मॉडुलस, या फिर इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, कुछ भी आप बोल सकते हो। इलास्टिक मॉडुलस जिसका हम एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं गाइस, ZE इज इक्वल टू m बटा सिग्मा भी तुमको हम दे चुके हैं। यानी कि गाइस सेफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, सेफ फैक्टर इज इक्वल टू गाइस, है ना, प्लास्टिक मॉडुलस, प्लास्टिक मॉडुलस, प्लास्टिक मॉडुलस बटा गाइस इलास्टिक मॉडुलस, है ना, प्लास्टिक मॉडुलस बटा इलास्टिक मॉडुलस। अब गाइस हम लोग समझते हैं, इलास्टिक मॉडुलस तो तुम लोग निकालने से जानते हो गाइस। अब हम लोग बात करते हैं, है ना, इलास्टिक मॉडुलस कैसे निकलेगा, और गाइस, है ना कैसे निकलेगा, ये चीज हम तुमको समझाते हैं और निकालने सिखाते हैं। देखो गाइस ZE का वैल्यू तो एज यूजुअल निकल जाएगा, है ना। देखो ध्यान से समझ, तो कीजिए ना सर। हाँ लो, चलो हो गया सर, हो गया। सर एक चीज याद रखना गाइस, हम बताएंगे भी तुमको कि, है ना, प्लास्टिक, है ना गाइस, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलता है। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस पे गाइस जो क्रॉस सेक्शन रहता है उसका एरिया दो दो बराबर भाग में होता है। क्या बोला गाइस, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस वो गाइस इमेजिनरी न्यूट्रल एक्सिस होता है जहां पे गाइस क्रॉस सेक्शन दो इक्वल एरिया में विभक्त हो जाता है। ये सारा चीज अभी नहीं समझ में आएगा, तुरंत डेरिवेशन करेंगे तो समझ में आएगा। तो गाइस देखिए ZE का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं गाइस कैसे निकलता है, वेयर ZE इज इक्वल टू I by Y। गाइस इसे निकाल लोगे इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस से, इससे निकाल लोगे ZE इज इक्वल टू I by Y से, आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस ZP का देखो अभी तुमको नहीं पता है, ये प्लास्टिक मॉडुलस गाइस ऐसे निकलता है A/2 इंटू Y1। बाप रे बाप, ये क्या है सर, है ना, ये क्या है, ऐसे निकलेगा गाइस। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तुम लोग को एक क्वेश्चन इसमें यही आएगा, एक क्वेश्चन गाइस तुमको यही आएगा, है ना गाइस, यही आएगा, है ना, यही आएगा गाइस। एक मिनट रुको। देखो गाइस ये होता है, देखो ये अब तो नहीं समझ में आया सर, ये देखो फॉर्मूला कैसे आया, इसकी सारा चीज हम समझा देंगे, डोंट वरी। ये गाइस ये होता है प्लास्टिक मॉडुलस, जैसे ये इलास्टिक मॉडुलस का ये फॉर्मूला I/Y होता है, वहीं पर गाइस A/2 इसको बोलते हैं गाइस फ्रॉम प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। देखो है ना गाइस, ये चीज नोट करके लिखना, एट दी प्लास्ट। देखो अभी क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ऐसे हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। एट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, एट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, एट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, है ना, एट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, है ना, है ना, है ना, एट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, एट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है गाइस, है ना, क्रॉस सेक्शन हैव द इक्वल एरिया। ये नहीं समझ में आएगा तुमको,
हैव इक्वल एरिया। अब देखो यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है गाइस, मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है ना, क्रॉस सेक्शन हैव इक्वल एरिया। ये नहीं समझे सर, देखो अब समझ में आएगा, डोंट वरी। यही गाइस हमारे सीनियर लोग को आया था, डिट्टो जैसा पढ़ाए थे वैसा ही आया था यहाँ से गाइस, एकदम 60 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था गाइस सिविल इंजीनियरिंग में। देखो अब यहाँ से तुम लोग अपने कंसेप्ट को बूस्टअप करो सिविल इंजीनियरिंग में 2021 में गाइस, ठीक है, DSS में, है ना गाइस, फ्रॉम ये देखो ये तुम लोग का बोर्ड है, इससे क्वेश्चन आया था, डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ था गाइस तुम लोग का, है ना। सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर निकालने, सेफ फैक्टर फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन, फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन फाइंड करना। डिट्टो एक क्वेश्चन छाप दिया था 16 नंबर का, रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, सेफ फैक्टर फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन। देखो अब इस चीज को तुम लोग समझोगे कैसे, हाउ यू कैन जस्टिफाई, है ना गाइस। देखो एक चीज हम तुमको बताते हैं, है ना, एक चीज तुमको बताते हैं, चीजें तुम्हारे आसान से हो जाएंगे, है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज याद रखना, यदि तुम्हारा क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक रहता है, जस्ट लिसन वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, इफ द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए particular beam is in symmetric nature, then in that scenario जो नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस होता है ना गाइस, जिसको तुम इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बोलोगे, उसी जगह पर मेरा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस भी एग्जिस्ट करता है। यानी गाइस ये मेरा एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, बात को ध्यान से समझिएगा सर, है ना। तो गाइस यदि प्लास्टिक है ना, ये गाइस मेरा, अब तो समझ में काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, हो सकता है ये क्वेश्चंस नहीं आके दूसरा क्रॉस सेक्शन का आ जाए, है ना, न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। देखो गाइस मैंने क्या बोला, यदि मेरा सेक्शन सिमेट्रिक रहेगा गाइस, तो जो मेरा नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस होता है उसी पर मेरा क्या लाई करता है गाइस, क्या लाई करता है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। यदि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की यदि हम बात करें तो क्या मतलब हुआ सर, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहे हैं, मतलब इसका अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन, इसी क्रॉस सेक्शन पे जगह यदि तुम इसका प्लास्टिक स्टेट में सारा का सारा फाइबर यील्ड कर जाएगा। तो गाइस मैंने तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट बताया, क्या कांसेप्ट बताया डियर स्टूडेंट, बताया कि यदि मेरा क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक होंगे तो वहीं पर मेरा क्या लाई करेगा गाइस, वहीं पे मेरा क्या लाई करेगा, बोलो, वहीं पे मेरा क्या लाई करेगा, क्या लाई करेगा, वहीं पे मेरा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस भी लाई करेगा। तो गाइस ये यदि पूरा डेप्थ गाइस मेरा d है, दिस इज माय d, दिस इज माय d, है ना गाइस, तो ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा, ये कितना होगा, d/2, d/2, d/2 गाइस। अब गाइस हमको इसका सेफ फैक्टर निकालना, तो फॉर्मूला क्या कहता है, प्लास्टिक मॉडुलस बटा इलास्टिक मॉडुलस। तो गाइस एट प्लास्टिक, है ना, एट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस तुमको पता होना चाहिए, ये एक एरिया में टूट गया गाइस, यह एक क्रॉस सेक्शन हो गया A1 मान लीजिए, यह एक क्रॉस सेक्शन क्या होगा गाइस A1, और ये क्रॉस सेक्शन क्या होगा गाइस A2। तो गाइस एट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो मेरा A बाई, है ना गाइस, है ना, A1 इज इक्वल टू A2 होगा, है ना गाइस, A1 इज इक्वल टू A2 होगा, मैंने बताया अभी कि गाइस इस पे ये बराबर होता है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, A/2 लिख सकते हो। ऑब्वियस सा बात है, इंटायर एरिया तो गाइस क्रॉस सेक्शन का क्या है, A है, तो A1 इज इक्वल टू A2, इट मींस A/2। नो सर, यस सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस मेरे को ये बताओ, है ना गाइस, अब मेरे को ये बताओ, है ना गाइस, तो जेडपी निकालना है तुमको, यू हैव टू कैलकुलेट द जेडपी, है ना गाइस। तो जेडपी तो इस एरिया का, इसका गाइस, अभी जो क्रॉस सेक्शन है इसका गाइस सेंट्रोइडल डिस्टेंस y1 गाइस, सेंट्रोइडल डिस्टेंस इसका कितना होगा, और इस गाइस इसका मेरा सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना होगा। तो गाइस जेडपी इज इक्वल टू प्लास्टिक मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए सर क्या होता है, बोलिए बोलिए सर क्या होता है, सर A/2 होता है इनटू क्या होता है गाइस, y1 इज द सेंट्रोइडल डिस्टेंस फॉर द, ये है देखो जो कट किया तो दो सेक्शन में बट गया, तो इसका गाइस सेंट्रोइडल डिस्टेंस और प्लस इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस। तो गाइस बताओ गाइस A का फॉर्मूला कितना होगा, हाउ मच द A गाइस, जस्ट टेल मी सर, ये मान लीजिए B b है, into d sir, तो B into D, वेरी गुड, B into D हो गया, और y1 का वैल्यू कितना होगा डियर स्टूडेंट, बोलो कितना होगा डियर स्टूडेंट, y1 का वैल्यू d/4, d/4, वेरी गुड, d/4 होगा, और गाइस y2 का कितना होगा सर, y2 का d/4 sir, नो वेरी गुड, d/4 होगा। तो सर इसको आप सॉल्व कीजिए, यू हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू, हाउ मच द वैल्यू यू आर गेटिंग गाइस, कितनी आ रही है, देखो कितनी आ रही है, गेम कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कितना आ रहा है, d² / 4, d² / 4,
बी डी स्क्वायर। हाँ है ना गाइस, कितना आ रहा है BD²/4। चलिए ये चीज आ रहा है गाइस मेरा ZP का वैल्यू, ZP का वैल्यू आ रहा है BD²/4। दिस इज माय प्लास्टिक मॉडुलस, है ना गाइस। अब गाइस प्लास्टिक मॉडुलस हमने निकाल लिया, तो डियर स्टूडेंट अब मेरे को ये बताओ गाइस, है ना, ये बताओ इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होती है गाइस, क्या होती है I/Y। तो गाइस बीम के केस में हमेशा हम क्या लेते हैं, IXX लेते हैं, और किसके अबाउट गाइस, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, है ना। हम तुमको पता है यदि सर पढ़ाए होंगे तुम लोग को बेंडिंग इक्वेशन, तो वहां पे गाइस फॉर्मूला में I हमेशा बेंडिंग इक्वेशन में किसके अबाउट लिया जाता है, XX के अबाउट लिया जाता है। तो गाइस यहाँ से भी गाइस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, यानी गाइस सेंट्रोइडल XG लिख सकते हो, सेंट्रोइडल XG, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा फॉर्मूला, बोलिए क्या होगा गाइस, क्या होगा, बोलो सर बोलो, ऐसे क्या होगा सर, क्या होगा BD³/12, वेरी गुड, और डिवाइडेड बाय गाइस ये तुम्हारा, अब गाइस ये तुम्हारा एक्सिस हो गया, तो इससे डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर, तो गाइस जो इसका क्यूब होता है शॉर्टकट में उसी का गाइस क्या हो जाता है, D/2 रख सकते हो, है ना गाइस, क्योंकि यही है तुम्हारा अब रेफरेंस, तो इससे एक्सट्रीम फाइबर की दूरी, तो गाइस कितनी हो गई, दिस इज हाउ मच, ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा BD² और ये हो जाएगा गाइस Z। तो यहाँ से गाइस हमने क्या निकाल लिया, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। आई होप यू गॉट द कांसेप्ट। अब बस वैल्यू को डिवाइड कर दो, आ जाएगा इस बुक में आ जाए। यस सर। चलिए सोचो इतने पे गाइस 16 नंबर था, 8 का था सर, 8 का एक और क्वेश्चन था। 8 था कि 16 था गाइस, 8 का था सर, एक पार्ट में था, एक पार्ट में थ्योरी एजम्पशन लिखने आया था अच्छा हाँ सर। उसमें पूछा था ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लास्टिक हिंज, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम रियल हिंज, अच्छा और एजम्पशन भी था साथ में। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डोंट वरी। हम्म ठीक है हो जाएगा। तो गाइस सेफ फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे गाइस आप क्या लिख सकते हैं, इलास्टिक मॉडुलस बाय प्लास्टिक मॉडुलस बाय इलास्टिक मॉडुलस, और ये गाइस कितनी है वैल्यू प्लास्टिक मॉडुलस की, BD²/4, और ये इनटू में डायरेक्ट कर दूं तो ये 6 हो जाएगी, और ये हो जाएगा गाइस BD²। गाइस यहाँ से वैल्यू तुम्हारा कितना आ रहा है 6/4, तो 2 3 6 एंड 2 दूना 4, 15 दूना 30, यानी 1.5। ये ऐसे भी याद रखो गाइस, सेफ फैक्टर फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन कितना आता है 1.5। तो गाइस तुम लोग का सीनियर लोग को गाइस आया था रेक्टेंगुलर, तो तुम लोग की प्रोबेबिलिटी है आने की पता है किसकी, या तो सर्कुलर सेक्शन पूछेगा या फिर गाइस क्या पूछ सकता है ट्रायंगुलर, यही 3 सेक्शन पूछेगा गाइस। तो सेफ फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन, तो तुमको गाइस ये भी बता देता हूँ, सेफ फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन, है ना गाइस, सेफ फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन, 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 है ना गाइस, सेफ फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन, सेफ फैक्टर। तो गाइस तुम लोग का ये है क्वेश्चन आने का संभावना, क्योंकि उस बार रेक्टेंगल दिया तो उस हो सकता है गाइस इस बार क्या दे दें, इस बार क्या दे दें, इस बार हो सकता है सर्कुलर सेक्शन दे दें। गाइस यदि मेरा सेक्शन सिमेट्री रहता है तो उसी जगह पर मेरा क्या लाई करता है गाइस, नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस, और गाइस प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस गाइस मेरा उसी पे लाई कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब गाइस इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस y1 ले लीजिए सर, और इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस y2 ले लीजिए सर, ये मेरा a1 हो गया, ये मेरा a2 हो गया गाइस। तो a1, अब देखो यहाँ पे गाइस ये न्यूट्रल एक्सिस है, हम लिख ही देते हैं न्यूट्रल एक्सिस, तो तुम लोग गड़बड़ कर देना a1। तो गाइस यहाँ पे भी a1 इज इक्वल टू a2 गाइस, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, ये एरिया इक्वल होता है। तो गाइस यहाँ से आपको क्या निकालना है सर, ZP का वैल्यू, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ZP गाइस। डियर स्टूडेंट तुमको पता है ना गाइस, सेमी सर्कुलर में, सेमी सर्कुलर यदि रहता है तो इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना होता है, डियर स्टूडेंट बोलो कितना होता है गाइस, ये डिस्टेंस कितना होता है, बोलेगा कितना होता है 4r/3 4r/3 रेडियस के टर्म में तो यही होता है डियर, या 2d/3 4r/3 होता है, 4r/3 होता है सर, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे गाइस, है ना, ZP इज इक्वल टू क्या होगा a/2 इंटू y1 प्लस y2। तो गाइस देखो एरिया को भी कोशिश करो, है ना, y2 नहीं होगा y1 प्लस y2 होता है फॉर्मूला। तो गाइस तुमको पता है ना ए कैसे निकालेंगे गाइस, एरिया निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए, फायदा में रहोगे क्या।
तो गाइज एरिया ऐसे क्या होता है गाइज, देखो एरिया जो होता है सर्कुलर सेक्शन का वो कितना होता है गाइज, कितना होता है पाई Pi आर r स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं है तो वहां आराम से चल जाओ। रेडियस के टर्म में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, और ये गाइज कितना हो जाएगा 4r अपॉन 3 पाई, और ये गाइज 4r अपॉन 3 पाई। तो गाइज 4r अपॉन 3 पाई 4r, ये गाइज कितना आ रहा है देखो, प्लास्टिक मॉडुलस कितना आ रहा है, हाउ मच इट इज कमिंग गाइज, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा गाइस, ये कितना आ जाएगा 4r³ बाई 3, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4r, करो कैलकुलेशन करो ना, कुछ नहीं है रे, आ जाएगा कितना 4r³ बाई 3 है ना, 4r³ बाई 3, ये गाइस मेरा हो गया प्लास्टिक मॉडुलस। क्या हो गया गाइस, प्लास्टिक मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या होगा बोलो, सेक्शन मतलब इलास्टिक मॉडुलस गाइस आई और कुछ सेंट्रोइडल जी बटा गाइस वाई। तो बाबू बोलो ये कितना हो जाएगा सर, इसमें तो सर किधरों से चलिएगा आपको यही आएगा पाई बाई 64 डी के पावर 4, और गाइस इंटू कितना हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 2/2। देखो अब होशियार रहना गाइस, क्योंकि वो आर के टर्म में है ना गाइस, तो थोड़ा होशियारी रहना है ना, तो चलेगा है ना। तो देखो पाई बाई 64 डी के पावर 4 को गाइस जैसे देखो इसे गाइस जैसे आई, इसमें काम थोड़ा सा लेट से करेंगे गाइस, पहले इसको क्या करो रेडियस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पाई बाई 64 डी के पावर 4 है गाइस, तो रेडियस के टर्म में क्या होगा पाई बाई 64, और कितना का क्यूब हो जाएगा 2r का क्यूब हो जाएगा, नहीं 2r का पावर 4 हो जाएगा। तो 2r का पावर 4 हो जाएगा तो 2 दूना 4 6 दूना 8 9 16 16 आर दूना अपॉन 16। हाँ 32 बाई r के पावर 16, यानी गाइस ये वैल्यू मेरा कितना निकल के आ जाएगी सर, कितना निकल के आ जाएगी 32 दूना 64, यानी कि गाइस बाई 2 इंटू r के पावर 4, कितना हो जाएगा ना सर, ये हो जाएगा क्या है ना, 2r d को क्या लिख सकते हैं 2r d इज इक्वल टू 2r, डायमीटर इज इक्वल टू 2 त्रिज्या होता है, तो दो दूना नहीं नहीं गलती लिखा हूं ना, 2 दूना 4 दूना 16 32 है ना, 2 दूना 4 6 दूना 8 यहाँ सर आया आर 16। हाँ 16 16 चक्का 64, तो गाइस ये कितना होगा सर 16 चक्का 64, ये तो गाइस ये कितना निकल के आया पाई r के पावर 4 गाइस, ये है ना 16 चक्का 64 है ना 4, अब उन्हें गाइस ये कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे गाइस हो जाएगा d/2, तो d/2 को गाइस फिर r के टर्म में कितना हो जाएगा d/2 है, तो गाइस कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा 2d, यानी गाइस r हो जाएगा गाइस, कितना हो जाएगा गाइस, इतना होगा देखो तो r ही होगा, क्योंकि देखो कितना होगा गाइस इसका है ना डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा ऑब्वियस सा बात है d/2 हो जाएगा, तो d/2 को गाइस d/2 को रेडियस के टर्म में लिखेंगे तो गाइस 2d/2 यानी 2r, तो गाइस r ही हो जाएगा, और r R की हो जाएगा वैल्यू सर, R हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन तो समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो गाइस इस प्रकार जेडी का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, जेडी का हाउ मच द वैल्यू ऑफ जेडी इज कमिंग पाई r³ बाई 4 आ रहा है ना गाइस, पाई r³ बाई 4 सभी को समझ में आया, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो बड़ा अच्छा सा कैलकुलेशन है पाई r³ बाई 4, सभी को क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, एनी ऑफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क मी, है ना, आस्क मी, मुझे पूछो पूछो, कहीं दिक्कत है कि यहाँ से कैसे कन्वर्ट किया, तो सर कुछ है नहीं वैसे। ये देखो बेसिकली किए क्या कि आर के टर्म में कैलकुलेशन किए हैं, तो गाइस हम ये जानते हैं पाई बाई 64 डी के पावर 4 इसको रेडियस के टर्म में ले आए, और गाइस y का वैल्यू करेंगे तो d/2, तो d/2 को फिर d को चेंज करो रेडियस में, तो गाइस ये 1 बाई डिवाइड बाई r करेंगे तो इनटू 1 बाई r, तो ये हो गया। तो गाइस इसका कितना आ रहा है सेफ फैक्टर, गाइस ये तुमको एग्जाम में आएगा रे, तुम्हारे लिए एक्सपेक्टेशन है, आ सकता है गाइस, आ सकता है एग्जाम में, आ जाए गाइस बोर्ड 2 में, बोलिए आ जाए, मैं प्रोसीड फॉर गाइस, हाँ आ जाए बोलो, लिख लिया गाइस, यस बोलिए सर आ जाए, यस आइए। चलिए। तो गाइस यहाँ से सेफ फैक्टर क्या निकल जाएगा बताओ, तुम ही लोग बताओ सेफ फैक्टर कितना आ रहा है, तुम ही लोग बताओ गाइस सेफ फैक्टर कितना आ रहा है, तुम ही लोग बताओ सेफ फैक्टर कितना आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है सेफ फैक्टर इसका, इसके बाद वो ट्रायंगल बता देंगे, तो यही तीन को में से एक वो आएगा, नहीं तो गाइस एक क्वेश्चंस भी करवाते हैं थोड़ा, कितना आ रहा है गाइस बताइए, बताइए हाउ मच द वैल्यू इज कमिंग गाइस, वैल्यू इज कमिंग, बोलो तुम लोग खुद से निकाल लो ना डियर स्टूडेंट, सेफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, सेफ फैक्टर इज इक्वल टू ZP बाई ZE, तो गाइस ZP का वैल्यू कितना हो जाएगा 4r³ बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई गाइस हाउ मच 4r³ बाई 3 डिवाइडेड बाई गाइस, डिवाइडेड बाई बोलो सर 1.69 आ रहा है। वेरी गुड 5r³ बाई 4 आ जाएगा सर, तो ये सर आपका 4r³ बाई 3 इंटू
4/πr³ गाइस, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ रहा है सर, कितना आ रहा है, आप लोग कितना बता रहे हैं, कितना आ रहा है? 1.69 1.69 1.697 करके कुछ आ रहा है गाइस, 1.697। तो गाइस इसको अप्रोक्सीमेट में 1.7 लिया जाता है गाइस, ठीक है ना, है ना, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 16 16/3 पाई। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा, और ये गाइस तुम्हारा इतना होगा। तो गाइस इसका एग्जाम में आने की संभावना है, तो 8 नंबर में आया तो तुम लोग बना देना, सभी कोई गलती मत करना कि इतना होता है। गाइस लास्ट में को हम लोग कर लेते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन। गाइस वी विल परफॉर्म द नाउ कैलकुलेशन फॉर द ट्रायंगुलर सेक्शन गाइस। ओके गाइस, तो लास्ट में परफॉर्म करो, ट्रायंगुलर सेक्शन भी आ सकता है तुम्हारा एग्जाम में। तो गाइस ये चीज अब देखो, तो तुम लोग को सीखे ना, तुम लोग खुद से दिमाग लगाना, ठीक है ना सर। सेफ फैक्टर for the triangular section, safe factor for the triangular section। सेफ फैक्टर फॉर दी ट्रायंगुलर सेक्शन गाइस, है ना, सेफ फैक्टर फॉर दी ट्रायंगुलर सेक्शन। तो देखो इसके लिए भी गाइस हम लोग कर लेंगे, हिम्मत करेंगे। है देखो ये गाइस मेरा ट्रायंगुलर सेक्शन है ऐसे, ये गाइस मेरा ट्रायंगुलर सेक्शन है ऐसे, है ना। ये गाइस मेरा सेंट्रोइडल डिस्टेंस है, मान लीजिए जी। तो गाइस यदि ये मेरी बी हो जाती है, यदि ये मेरी बी हो जाती है, तो गाइस ये मेरी हाइट क्या हो जाएगी, ये हाइट मेरी एच हो जाएगी। ऑब्वियस सवाल। यदि मैं तुमसे ये पूछूं किसी जमाने में हाई स्कूल याद करो, जाने कहाँ गए वो दिन, 2h/3 मास्टर साहब पढ़ाते थे हाई स्कूल के, और h/3 ये होती है सर। तो बाबू यदि इसका ये अब गाइस, चूंकि ये सेक्शंस, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, है ना गाइस, है कि अब गाइस ऑब्वियस सा बात है क्या यहाँ पे, है ना। अब देखो ये भी गाइस, देखो यहाँ पे गाइस 2 इक्वल भाग में बट रहा था, है कि नहीं, 2 इक्वल भाग में बट रहा था। तो गाइस इसका ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये देखो ये गाइस इसका सेंट्रोइडल एक्सिस, ये इसका गाइस सेंट्रोइडल एक्सिस, तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस है। क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। अब मेरी बातों को सुनो, मैंने इससे पहले एक लाइन बोला था कि गाइस आमतौर पे जहाँ पे सिमेट्री सेक्शन बनता है वहीं पे गाइस मेरा न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस फॉर्म कर जाता है। तो गाइस अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस गाइस इस जगह पे भी है ना, क्योंकि देखो अब दूसरा कोई, क्योंकि गाइस देखो यही ट्रायंगल को 2 इक्वल भाग में हम बांट रहे हैं, तो इसका एरिया, यानी कि गाइस इस केस में भी मेरा जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होता है वो कहाँ पे लाई करता है स्टूडेंट, वो यहीं पे लाई करता है ना, यहीं पे लाई करता है। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और गाइस न्यूट्रल एक्सिस का जो पोजीशन होता है वो यहीं पे लाई करता है, यहीं पे लाई करता है। इसमें भी गाइस याद रखिएगा, है ना। सर्कुलर में तो ठीक है, रेक्टेंगुलर में भी ठीक है। अब बोलेगा सर सिमेट्री का बात कर रहे हो, तो गाइस इस ट्रायंगल के केस में भी गाइस जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस पे ही मेरा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना। तो गाइस देखो अब ये वाला यदि हम तुमको हाइट बोले कितना होगा, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो तुमको हम इसको बोल सकते हैं b1 अपना मन से, क्योंकि इसके बराबर तो होगा नहीं, कंफर्मेशन है। इसको तुम लोग हम लोग क्या बोल सकते हैं गाइस, b1, क्या बोल सकते हैं गाइस, b1, है ना, क्या बोल सकते हैं गाइस, b1, है ना, क्या बोल सकते हैं गाइस, b1, है ना। या फिर एक चीज हम तुम लोग को बताना चाहेंगे, या फिर ऐसे मत समझो, क्योंकि गाइस देखिए इसमें थोड़ा सा तर्क भी समझते हैं। क्या सबसे बेस्ट है कि सर कैसे होगा ये भी बताओ ना, कैसे होगा ये भी बताओ, चलो ठीक है अभी नहीं पता, ऑब्वियस बात है। तो गाइस ये जो हम ड्रॉ किए हैं किसके लिए ड्रॉ किए, देखो ये सिमेट्री जैसा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि 2 इक्वल भाग में बटेगा तो सिमेट्री तो दिख नहीं रहा। तो गाइस अभी हम लोग इसके लिए क्या काम करेंगे, सेंट्रोइड, जी इज द सेंट्रोइड। तो गाइस है ना, इलास्टिक यहाँ से निकाल लो, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, गाइस प्लास्टिक हम लोग अलग से निकालते हैं। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, तुम ही लोग बोलो क्या हो जाएगा गाइस। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस जेडी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो IXG/Y। तो इस हिसाब से गाइस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्या होता है गाइस, क्या होता है BH³ क्या होता है 36, और डिवाइडेड बाय y का वैल्यू गाइस डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, तो क्या हो जाएगा 2h, जो 2h/3 होगा गाइस। अभी हम लोग नॉर्मली निकालते हैं, अभी देखो न्यूट्रल एक्सिस ही लिखते हैं, तो इलास्टिक की बात कर रहे हैं गाइस। यहाँ से जेडी का वैल्यू कितना होगा तुम लोग बताओ,
जेडी का वैल्यू कितना बी होगा? एच स्क्वायर अपॉन 6, बी एच स्क्वायर अपॉन 6। बी एच स्क्वायर अपॉन 24 ना रे, स्क्वायर बाय 24 सर। बी एच स्क्वायर अपॉन 24 है ना, बी एच स्क्वायर बाई 24। अब गाइस प्लास्टिक की बात करते हैं, ये तो प्लास्टिक, ये तो कैलकुलेशन किए गाइस इलास्टिक के लिए, आप प्लास्टिक मॉडुलस की काम करते हैं। तो गाइस प्लास्टिक मॉडुलस के लिए क्या काम करेंगे, है ना। अभी आप कैसे कह सकते हैं सर, आपकी बात को नहीं मानेंगे, आप हर जगह बोलिएगा तो थोड़ा मानेंगे। क्या सबूत है आपके पास कि इसी पे मेरा प्लास्टिक सिमेट्री जाता, तो चलिए ठीक है, सिमेट्री पर आपकी बातों को मान लिए कि सिमेट्री पर गाइस मेरा न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस एक ही जगह पे लाके डालो, ठीक है, मत मानो मेरा बात। दूसरा भी तरीका है हमको इसको निकालने का। देखो ये ट्रायंगुलर सेक्शन है ना, तो गाइस इतना तो पता है कि प्लास्टिक यदि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस एग्जिस्ट करेगा तो गाइस वो तो गाइस ट्रायंगल के अंदर में ही कहीं करेगा। मैं राइट और रॉन्ग पहले ये बताओ गाइस, ठीक है सर, ये बात हम नहीं मान सकते ना, क्योंकि ट्रायंगल में काटिएगा तो एक तो ट्रायंगल बनेगा, दूसरा क्या बन जाएगा गाइस, ट्रेपेजियम बन जाएगा। सर दूसरा तो ट्रेपेजियम बन जाएगा, तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस अब वो इलास्टिक मॉडुलस के लिए काम किया, अब हम गाइस किसके लिए काम करते हैं, प्लास्टिक मॉडुलस के लिए। अब देखो हम दिमाग लगाते हैं, सही बात है सर, सिमेट्री तो लग नहीं रहा है यहाँ पे। मान लीजिए त्रिभुज है गाइस, ये ट्रायंगल है, दिस इज माय ट्रायंगल, दिस इज, ध्यान से समझना। अब मैं बोलूंगा गाइस कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस मेरा कहाँ लाई करेगा, है ना गाइस, मेरा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, वेयर माय प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस विल एक्ट, या कहाँ एक्ट करेगा। तो गाइस अपने मन से मान लो कि ये तो गाइस कहीं ट्रायंगल है में लाई करेगा रे, ये गाइस इसकी हाइट h है, मान लीजिए इसकी हाइट h है गाइस, देखिए ध्यान से समझो, ये गाइस मेरा ऐसे है, बाबू ध्यान से समझो, ये देखो ऐसे है, तो गाइस ये इसकी हाइट h है डियर स्टूडेंट। तो ऑब्वियस सा बात है, यदि मेरी प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की आप बात करेंगे तो कहीं कहीं लाई करेगा, हमको नहीं पता कितना पे लाई करेगा, तो हम अपने मन से h1 लिख देते हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे लाई करेगा, लेकिन हाँ वो अभी गाइस इमेजिनरी वैल्यू को मैंने क्या ले लिया गाइस, क्या ले लिया, h1 ले लिया, h1 ले लिया। तो गाइस यदि ये h1 ले लिया गाइस प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस को, तो ये मान लिया, अब इसके अंदर में ना लाई करेगा रे, ऐसा तो नहीं है कि इससे बाहर लाई कर जाएगा, नहीं ना, तो अभी हमको नहीं पता कहाँ लाई करेगा। तो गाइस हम ले लिए कि चलो h1 डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा डियर, ये कितना होगा, h minus h1 h1, और ये तो गाइस बाय डिफॉल्ट मेरा p है ना, क्योंकि देखो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो गाइस ये डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो सर इसको आप b1 ले लीजिए, इसको आप क्या ले लीजिए गाइस b1, इसको आप क्या ले लीजिए b1, यू टेक इट b1। अब गाइस देखो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ज्यादा है, हमको b और h भी दिया हुआ है, मेन जो है गाइस b और h से मतलब, ये सब h1 h सब हम अपने से माने हैं गाइस, है ना, तो इसके टर्म में आप आंसर नहीं ला सकते। तो गाइस यहाँ पे ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला, देखो ये त्रिभुज छोटा वाला और गाइस ये दोनों समरूप त्रिभुज है गाइस, है ना, सिमिलर ट्रायंगल, हम लोग पढ़े ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थेल्स पर में क्या कहते थे गाइस, कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसकी गाइस कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। किसी जमाने में पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे कि नहीं गाइस, एम आई राइट और रॉन्ग बोलो, पढ़ा था गाइस। देखिए at the plastic neutral axis बोलो डियर स्टूडेंट, ये मान लीजिए a1 है, दिस इज आवर a2, तो गाइस क्या होगा बताओ, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a/2, एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर, इससे हम सहमत है सर, इससे हम सहमत है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि ठीक है a2 के लिए क्या काम करना, अब एक चीज देखो a1 इज इक्वल टू a, गाइस ये वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस देखो अब ना कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, अब a1 इज इक्वल टू a/2 लेके चलते हैं ना, क्या दिक्कत है ना, एज प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस पर, ये मत बोलना एज प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस पे दो एरिया बराबर होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a। तो गाइस a1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, व्हाट यू कैन राइट b1 h1 by 2, क्योंकि 1/2 into base into height, तो 1/2 base into height, और गाइस इंटायर एरिया के लिए क्या लिख सकते हो, 1/2 b into h। तो गाइस यहाँ से तुमको क्या मिल रहा है, b1 h1/2 is equal to गाइस bh/2, ये गाइस तुमको मिल रहा है। इस इक्वेशन को अभी तैयार रखो तुम, इस इक्वेशन को तुम कह दो गाइस इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को क्या कहा, तो इक्वेशन नंबर 1 कैसे किया गाइस तुमको पता चला, मैंने, ठीक है सर आपका बात क्यों मानेंगे कि है ना, हमने माना कि इस सेक्शन के अंदर है ना कहीं प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा। अब प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस उनको पता है क्या होता है ना, जहाँ पे प्लास्टिक हिंज बन जाएगा, है ना गाइस, ऊपर नीचे सारा फाइबर गाइस हिल कर जाता है। तो गाइस इस जगह पे हमने माना h1, हमको अभी नहीं पता है डिस्टेंस कितना है, छोड़ दो। तो गाइस प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस a1 इज इक्वल टू a2, ये तो ठीक है गाइस। अब देखो b1 h1 तो वेरिएबल है ना भाई, हमको वैल्यू तो b और सर
सर हाँ बोलिए ये बोलिए। जहाँ पे मतलब a/2 सर, a का वैल्यू तो 1/2 सॉरी 1/2 इंटू b इंटू h ना होगा सर। हाँ इसका तो लिखे तो है वन तो बाई सर वहाँ पे सर बाय 2 में तो सर 4 ना हो गया वहाँ। कहाँ पे सर बोलो। a/2 लिखे है तो वहाँ सर a/2 लिखे है ना सर, वहाँ पे ये 1/4 ना हो जाएगा। हाँ सही बात है, वेरी गुड। देखो वो कितना ध्यान से समझ रहा था, तुम लोग बाकी सब सुतल था। गैस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, BH/4। वेरी गुड, ये होगा गुड। मनीष के लिए गैस एक बिग थम्स अप बनता है। बाकी सब कहाँ दिमाग लगाया पता नहीं। A/2 सही बोला सर, 1/2 इंटू B इंटू H होगा, एरिया ठीक है, चलो गुड। ये हो गाइस। अब देखो गाइस, ये दो छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप है गाइस। तो दो सब त्रिभुज त्रिभुज जब आपस में सिमिलर रहते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, बोलिए क्या होते हैं गाइस, क्या होते हैं, क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से गाइस, यहाँ से तुम निकालो, यहाँ से गाइस B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू BH1/H। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस क्या कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज है ना गाइस, या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देख लो यार थोड़ा सा कैलकुलेशन। ये काहे इतना तामझाम कर रहे हैं, इससे आगे भी बढ़ सकते थे, क्योंकि इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि B1 H1 के टर्म में नहीं लाना है ना, B और H दिया हुआ है मैंने, ये तो गाइस अपने से माने हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B1 इन इक्वेशन किस में रखेंगे गाइस, किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे इक्वेशन 1 में। तो देखो रखो गाइस, रखो इक्वेशन 1 में। तो देखो B1 का वैल्यू रखिए गाइस, B1 का वैल्यू कितना है, B इंटू H1/H रख चुके हैं, इंटू गाइस H1 इंटू बाई H1, और ये गाइस मेरा 2 हो चुकी है, और ये है गाइस B और H, और ये गाइस मेरा 4 हो चुका है, ये गाइस मेरा 4 हो चुका है। तो गाइस यहाँ से गाइस क्या होगी सर बताओ, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा गाइस, इसको आप इससे काट सकते हैं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2BH1 का स्क्वायर, और ये क्या होगा गाइस BH का स्क्वायर। जी सर ये ठीक है, यहाँ से गाइस भी उड़ गई, और गाइस यहाँ से H1 का स्क्वायर इज इक्वल टू H²/2 हो गया। तो गाइस यहाँ से H1 का वैल्यू कितना आया सर, H1 का वैल्यू H/√2, H/√2 आया, H/√2 आया गाइस। तो गाइस B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब यहाँ यदि B1 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B1, है ना गाइस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B1। देखो इसका वैल्यू निकाल लो, है ना H1, तो गाइस B/H, देखो B1 का वैल्यू B और H के टर्म में निकाल, B1 तो वेरिएबल है ना गाइस, हमको दिया हुआ H है और B है, तो इसके टर्म में निकालेंगे, है ना, मिटाएंगे नहीं, थोड़ा सा समझ लेना, समझ जाओगे। B/H और H1 का वैल्यू कितना निकला H/√2। तो गाइस यहाँ से क्या हुआ B/√2, B/√2 है ना। तो गाइस अब हमको तो खेला करना है, अब खेला करना गाइस, प्लास्टिक मॉडुलस निकालना। तो गाइस Y1 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि गाइस तुम अब यहाँ से क्या निकालोगे डियर स्टूडेंट, बोलो। देखो अब तुम लोग को तरीका समझाते क्यों इतना तामझाम किया, समझ में आ जाएगा तुरंत, डोंट वरी, है ना। B1 का वैल्यू B/√1, गाइस A1 का वैल्यू अब गाइस Y1, देखो अब तुमको निकालना है गाइस, तो बताओ क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है भाई बाबू बताओ, ZP इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बताइए क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, बोलो ZP इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है A/2, हाँ Y1 + Y2, है ना, वेरी गुड, Y1 + Y2। तो गाइस इसका Y1 का वैल्यू आयुष बोलेगा, कितना होगा आयुष, Y1 का वैल्यू कितना होगा, देखो चलो ठीक है, ठीक है गाइस, है ना, ये सारा चीज कर दे, यहीं पे थोड़ा सा करते कैलकुलेशन गाइस, तुम लोग समझ जाओगे ना। 1/3 हो जाएगा ना सर Y1। हाँ वेरी गुड, हाँ देखो ये चीज ऐसे लिखा, ये चीज ऐसे लिखा, यहाँ पे गाइस B1 का वैल्यू यहाँ पे रख दिया। तो गाइस क्योंकि देखो ZP इज इक्वल टू क्या होता है सर, ZP इज इक्वल टू तुमको पता है A/2 Y1 + Y2 सेंट्रोइडल होता है। तो गाइस Y1 का वैल्यू पहले निकालिए, Y1 का वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, कितनी हो जाएगी सर, बोलिए कितनी हो जाएगी, H1/3 H1/3। H1/3 के टर्म में मत रखो, क्योंकि H1 वेरिएबल है गाइस, उसको H के टर्म में रखो। तो गाइस H1 का वैल्यू कितना है बताओ, H1 का वैल्यू H/√2, यानी गाइस H/√2 है गाइस, है ना, 3√2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये Y1 का वैल्यू हो गई सर, Y1 का वैल्यू बिल्कुल सही आई है,
है ना सर। और इसको यदि तुम डेसिमल में लिखोगे सर तो क्या होगा, कितना आ रहा है देखो तो, डेसिमल में सॉल्व करो तो गाइस देखो तो कितना आ रहा है, 0.235 आ रहा है, देखो तो आ रहा है, देखो ना सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0.2357। हाँ 0.235, वेरी गुड। अब गाइस y2 का आप तुमसे पूछेंगे कितना होगा, बता पाएगा? हाँ बता पाएगा y2 का, ट्रेपीजियम है लेकिन इसमें भी बताना चाहिए तुम लोग को, है ना गाइस। देखो एक याद करो, याद ये ऐसा ट्रेपीजियम है गाइस, ऐसा ट्रेपीजियम होता था, ऐसा ट्रेपीजियम होता था, हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है। और गाइस ये मेरा क्या होती थी सर, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी होता था गाइस। तो तुम याद करो कि इसका डिस्टेंस, और ये गाइस मेरा एच होता था, एच होता था। तो गाइस इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस ये वाला कितना होता था बोलो, याद है किसी को फॉर्मूला, h/3 क्या होता था गाइस, 2a + b बटा b plus a plus b। ऐसा था ना, देखो एक मैकेनिक्स में पढ़े होगे, ऐसा ही था गाइस, ऐसा ही था, 2a + b होता था ना, क्या है? सर ये हाँ, y सर सही है सर। y1 = 0.235 h ना होगा? हाँ 0 पॉइंट, हाँ वो लिख दो, गलती से छूट गया, एच बी होगा, एच बी होगा ये गाइस, h/3 2a + b। गाइस यदि हमको ऊपर से निकालना है तो क्या होगा, तो गाइस हमको तो यहाँ से निकालना है डियर स्टूडेंट, ये तो नीचे से होता है ना गाइस, तो ऊपर से कितना होगा, कोई बता सकता है कितना a होगा? plus 2b हो जाएगा सर ऊपर बस। a + 2b, वेरी गुड। यदि यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड, एक्सीलेंट गाइस। h/3 क्या होगा, a + 2b / a + b, यही ना बोल रहे हो ना चिराग, यही ना बोल रहे हो, सर a h/3 plus 2b upon a plus b। हाँ चलिए, हाँ 2b को आगे लिखो पीछे लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो गाइस आप लोग y2 का वैल्यू हम लोग से निकालते हैं बोर्ड नंबर 2 में, चीजें तो समझ गए ना, यही होता है, इधर से नीचे से h/3 2a + b बटा a + b, ऊपर से h/3 a 2b बटा a + b, ऊपर से guys। तो ऊपर से ही हमको जरूरत है, हमको तो गाइस ऊपर से जरूरत है ना, यहाँ से y2 आ जाए सर गाइस, वो सिमिलर ट्रायंगल वगैरह मतलब बस उसको कन्वर्ट करने के लिए किया है, मतलब बस h और b के बस हाँ, क्योंकि देखो अब ये b1 h1 फिर तुम्हारा अलग आएगा ना चिराग, नहीं समझा, b1 और h1 का ये तो वेरिएबल है, मतलब हमको वो तो गाइस किससे इवन मतलब है? सर क्वेश्चन में h और b ही ना रहेगा। हाँ बिल्कुल, हमको दिया, वेरी गुड, यही चीज समझना है कि b और h दिया हुआ है सर, और कुछ नहीं दिया हुआ है, ये तो आप अपना मन से h1 माने कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस h1 पे लाइक करना, b1 का विड्थ तो ऐसे वेरिएबल लेके चले तो दिक्कत हो जाएगा ना बाबू, इसीलिए सिर्फ ये वाला क्यों किया, सिमिलर क्यों किया कि b1 को किसके टर्म में लाने के लिए, सिमिलर का प्रॉपर्टी क्यों लगाया, जी क्यों लगाए, b1 इन टर्म ऑफ b लाने के लिए और h1 इन टर्म ऑफ h लाने के लिए। अब समझ में आया, देखो अब क्लियर हो गया, क्योंकि h और b दिया हुआ रहेगा सर, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, तो गाइस h1 इन टर्म ऑफ h एंड b1 इन टर्म ऑफ b। ओके गाइस, आ जाए बोर्ड 2 में, y2 तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं सर, आ जाए y2 के लिए, बोलो। यस सर। चलिए चलिए, आधा से अधिक ही चैप्टर बता दिए आज, सोचो आधा से अधिक, एक क्लास और लगेगा तो इसको पूरे फिनिश कर देंगे, पूरे फिनिश हो जाएगा। चलिए सर, बस ये वो सीधा साधारण कॉन्सेप्ट की एट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, है ना, यदि पूरा फिगर सिमेट्री है तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस पे ही गाइस मेरा क्या लाई कर जाएगा, है ना, एक्चुअल मतलब ये जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस या फिर नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस जो होते हैं या इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस वहीं लाई कर जाएगा, सिर्फ यही अनसिमेट्री जाएगा, उस केस में तुमको ऐसे सपोजिशन करना पड़ेगा जैसे हम कैसे कर रहे थे। तो गाइस अब y2 का वैल्यू क्या होगा, कोई तुम ही लोग बोलो क्या होना चाहिए, y2 का वैल्यू बोलो गाइस क्या होगा, y1 निकाल चुके हैं, y2 का वैल्यू क्या होगा, y2 का वैल्यू क्या होगा, बोलो बोलो तुम ही लोग क्या होगा, क्या होगा सर, है ना, बोलो उसी को देख के बोलो ना, ऊपर से h/3 यानी कि h - h1/3 हो जाएगा सर, और फिर क्या होगा देखो क्या हो जाएगा, बोलो a + 2b या 2b + 3, तो गाइस है ना ऊपर वाला वैल्यू को जितना है लिख दो गाइस, है ना, क्या हो जाएगा, b1 + 2b। हाँ 2b + b1 कर सकते हो गाइस, 2b + b1 और बटा गाइस b + b1। अब गाइस इसको बस b1 को किसमें हम लोग हटा देंगे, इसमें हटा देंगे, अब बस इसको तुम सॉल्व कर लो, है ना, तुम इसको सॉल्व कर लोगे, h1 को भी सॉल्व कर लोगे गाइस, तुम इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, h1 को गाइस तुम सॉल्व करोगे, h1 को h/√2 ले लेना, अब b1 को तुम सॉल्व करोगे गाइस, है ना, h1 को किससे रिप्लेस करेंगे, देखिए वो h है, h1 को किससे रिप्लेस करेंगे, h/√2 से, और ये गाइस 3 हो गया, ये मेरा 2b हो गया, और b1 को किससे रिप्लेस करोगे, b/√2 को, है ना, b/√2, और गाइस यहाँ पे b/b√2, गाइस कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सर, यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो कुछ नहीं है, यदि इसको आप सॉल्व कीजिएगा गाइस तो देखो, सॉल्व करोगे गाइस तो देखो ये तो इतना कैलकुलेशन करके हमको दे रहा
है ना 0.15। क्या कैलकुलेशन इससे हम लोग को कर लेना चाहिए, कर लो ना कैलकुलेटर की मदद से, कर ही लो गाइस, कर ही लो, नहीं तो फिर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो, है ना गाइस, कर लीजिए कैलकुलेशन, कर लीजिए डियर स्टूडेंट, है ना। मेरा वो पता नहीं कहाँ है, केएलसी है ना, मेरा केएलसी। तुम लोग कैलकुलेशन को तुरंत कर लो गाइस, कर लो 1-2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं समय लगेगा। हाँ, हम भी अपना औजार निकाल लिए हैं और गाइस इसको कर ही लो गाइस, है ना, क्या बोलते हो? 0.1547 आ रहा है सर। कितना आ रहा है यहाँ पे? देखो y2 का वैल्यू 0.155 h दे रहा है। 0.1547 हाँ 0.1547 आ रहा है सर। यहाँ पे निकाला हुआ डायरेक्ट 0.155 h करके आ रहा है गाइस। इसका मतलब साथ ही बाकी b भी कट जाएगा, इसका मतलब क्या आ रहा है? इतना आ रहा है सर बी कटेगा नहीं, कॉमनली आ रहा है बी। हाँ तो देखो कहीं तो b के टर्म में तो नहीं कॉमन लेके कैंसिल ही हो जाएगा सर, वो बाहर निकलेगा ऊपर कॉमन से लेके कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। तो इतना आ जाएगा कि करना पड़ेगा, बोलो तो थोड़ा समय बच जाएगा हम लोग का। कुछ है नहीं, कैलकुलेटर से एक बार में आ कर लो, जाएगा सर, आ जाएगा। आ जाएगा ना, जाएगा कंफर्म है, आ जाएगा एकदम। इतना आएगा एकदम कंफर्म, इसे रटा रटाया है ना, एकदम कंफर्मेशन है गाइस, इतना है। तो गाइस अब जेडपी निकाल लो, जेडपी निकाल दो, कैलकुलेशन कर लेना यार, बोलोगे तो कैलकुलेशन कर देंगे, वैसा कुछ नहीं है। क्या कर दें बोलो? नो सर। नो सर आएगा। हो जाएगा सर। देखो जेडपी गाइस, जेडपी तो जेडपी इज इक्वल टू a/2 y1 प्लस y2। तो गाइस a का वैल्यू तुमको पता है कितना है? a का वैल्यू गाइस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो? a का वैल्यू a/2 है गाइस, तो कितना हो जाएगा? तुम ही लोग बोलो कितना हो जाएगा, 4 into b into h। कितना हो जाएगा? 1/4 into b into h। हाँ हाँ, b इंटू एच बाई 4। y1 का वैल्यू गाइस कितना हो जाएगा? 0.235h और ये हो जाएगा 0.155h। गाइस इसको सॉल्व कीजिए तो जेडपी का वैल्यू बोलिए तो कितना आ रहा है? जेडपी का वैल्यू कितना आ रहा है? कितना आ रहा है गाइस बताओ, कितना आ रहा है? इसको तो सर कैलकुलेशन करो, कितना आ रहा है? 0.0975 bh square। कितना आ रहा है? 0.09। 975। हाँ तो 98 कर देते हैं BH स्क्वायर। तो गाइस सेफ फैक्टर निकाल लीजिए, ZP बाई ZE गाइस ये क्या होगा? 0.098 BH स्क्वायर, और ये गाइस ZE का वैल्यू कितना हो जाएगा? BH स्क्वायर बाई 24। इसको गाइस सॉल्व करोगे 1352। हाँ तो गाइस ये आ रहा है 2.34 आ रहा है इतना लगभग में सेफ फैक्टर। 2.352 आ रहा है सर। हाँ यस सर, चलेगा 2.35। किताब में, हाँ हाँ ठीक है, किताब में 2.34 निकाला। अब एक दो क्वेश्चंस और है गाइस जो हम करवा देंगे। अब एक दिन और पढ़ोगे क्या इसको? एक दिन और पढ़ोगे कि क्या करना बोलो? आधा से अधिक हम खींच दिए सिलेबस। अब एक दो क्वेश्चंस गाइस जैसे कि तुमको दे देगा आई सेक्शन टी सेक्शन, उसका गाइस तुमको Yes, बोलेगा sir, कि बता निकालने क्या वो वाला ना। बता दीजिएगा सर। हाँ तो वो वाला भी बता देंगे। और गाइस कोलैप्स लोड गाइस वो भी बता देंगे क्या? और रियल इन प्लास्टिक इंच का भी डेफिनेशन सर थोड़ा लिखा पढ़ दीजिएगा। लिया ना हमसे, ज्यादा नहीं 1.5 घंटा और पढ़ लोगे तुम हमसे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मात्र सर 1.5 रियल घंटे। हिंज प्लास्टिक इंच का डेफिनेशन लिखा दीजिएगा सर। ठीक है रियल हिंज और प्लास्टिक हिंज का डेफिनेशन गाइस 1.5 घंटे का क्लास और कोई दिन अरेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? क्या बोलते हो? बहुत ज्यादा रात हो गया, 10:15 हो गया क्या? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, ओके गाइस, गुड नाइट।